हमने देखा कि जब GFR, when the GFR is low, okay, yes, come in. So we saw that kidneys, they have an inbuilt mechanism to regulate the glomerular filtration rate. How much is the normal glomerular filtration rate? 125 ml per minute. How much per day? 180 liters per day. How much in 10 days? GFR 10 days में कितना होगा? 1800 liters per day. Okay, 180 into 10 किया. Now, kidneys they have an inbuilt mechanism. उनके पास खुद का एक apparatus होता है जिससे वो GFR को regulate करते हैं. What is that mechanism? Specialized cells in the DCT and specialized cells in the afferent arteriole मिलके बनाते हैं juxtaglomerular apparatus. Cells in the DCT are called what? Macula densa. D से DCT, D से macula densa. Juxtaglomerular cells will be cells in the efferent arteriole. So efferent arteriole is close to the glomerulus. So the cells over there will be juxtaglomerular. That is how you will remember. And this apparatus will be called JGA, that is juxtaglomerular apparatus. ये क्या करेगा? कब function करेगा? Yes, it can sense if GFR is low. It can sense if GFR is low. It stimulates the kidney when the GFR is low to release what? Renin. To release renin. अब दो questions हैं. Renin कब release होगा? जब GFR कम है. और renin क्या करेगा? GFR को increase करेगा. ये sentence का meaning MCQ में you will have to be very particular about the language of the MCQ. Here is where grammar comes into question. Okay? Because दोनों answers हो सकते हैं. अब MCQ क्या पूछ रहा है in relation to renin? Renin is released when GFR is low. And what does renin do to GFR? It increases the GFR. Alright? So renin का function होगा GFR को increase करना. But renin कब secrete होगा जब GFR low है. Alright? So some specialized cells in the kidney, they regulate the GFR. GFR when it is low, it activates the juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus activate होगा तो renin release होगा. और renin क्या करेगा आगे? What will renin do? Yes, renin is required for this to convert angiotensinogen, which is in an inactive form. It converts angiotensinogen to angiotensin 1 and then angiotensin 1 is converted to angiotensin 2. यहाँ पे एक enzyme भी लगता है, which is ACE. What is ACE? Angiotensin converting enzyme. ACE, that is angiotensin converting enzyme, which converts angiotensin 1 to angiotensin 2. क्या actions है angiotensin 2 के? 3 action. क्या action है angiotensin 2 के? Increases the blood volume. How it will increase the blood volume? Increased reabsorption करके. और क्या करेगा? Vasoconstrictor है. Vessels को constrict करेगा. BP को increase करेगा. All right? और क्या करेगा? Yes. Stimulates release of aldosterone from the adrenal gland. Now adrenal gland, जैसे kidney divided है ना cortex और medulla में, adrenal gland is also divided into cortex and medulla. So this hormone is from the cortex part of adrenal gland. ये हम hormonal coordination में फिर से देखेंगे. Okay? This aldosterone hormone, it is from cortex part of adrenal gland. ये hormonal coordination में हम फिर से देखेंगे when we will see hormones. So increase aldosterone क्या करेगा? Increased reabsorption of sodium and water in the kidney. ये जब साथ में काम करते हैं तो it is called renin angiotensin aldosterone system. अब RAS क्या करता है? BP को increase करता है, blood volume को increase करता है.
वाटर को इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करता है. ऑलराइट, कब तक ये रास को हम काम करने देंगे टिल व्हाट टाइम? हाँ, मतलब जब बीपी नॉर्मल पे आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पे आ जाएगा, तब ये काम करना बंद करना चाहिए कि नहीं? तो कौन चेक रखेगा इसके ऊपर? Who will keep a check on this renin, angiotensin, aldosterone system? कौन चेक रखेगा? ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो अल्टीमेटली लोड किस पे बढ़ेगा? हार्ट पे. सो हार्ट विल कम इनटू एक्शन ओवर हियर. हार्ट में एक हार्मोन रहेगा which the atria of the heart will secrete, which is ANF. Keeps a check on RAS, renin, angiotensin, aldosterone system. We call it that it is the policeman for this, because policeman he will keep the check कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ना नहीं चाहिए. Okay, so ANF will be the policeman. Now what is the full form of ANF? It is atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. It is the policeman. किसके ऊपर चेक रखेगा ये policeman? On the renin, angiotensin, aldosterone system. अब ये हार्मोन हार्ट से सिक्रीट होता है. The atria of the heart. Atria of heart secrete this atrial natriuretic factor. Both atria of the heart, they secrete this atrial natriuretic factor. ये एट्रिया के पास स्पेशल रिसेप्टर्स रहते हैं जो सेंस कर सकते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड वॉल्यूम. एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट. हार्ट के रिसीविंग चेंबर्स कौन से होते हैं? ब्लड जिससे रिसीव होता है. अब कोरिलेट करो, ब्लड अगर हाई प्रेशर पे रिसीव हो रहा है, हाई वॉल्यूम में रिसीव हो रहा है, तो कौन सेंस कर सकेगा इसको? एट्रियल वॉल. एट्रियल वॉल हैज रिसेप्टर्स which can sense high BP, which can sense that blood pressure is high, blood volume is high. Now you understand कि क्यों एट्रिया में ये रिसेप्टर्स होंगे, because एट्रिया ही रिसीव कर रहे हैं. Are you following it? नहीं तो सामने आओ. एट्रिया रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसीविंग चेम्बर्स हैं, तो उनको पता चलेगा कि ब्लड जो आ रहा है वो बहुत हाई प्रेशर पे आ रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम है. And when there is high BP, there is high blood volume, they will secrete atrial natriuretic factor. So when there is high BP, high blood volume, they secrete ANF, atrial natriuretic factor. तो अब ये क्या करेगा? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? यस, क्या करेगा? ऑपोजिट एक्शन करेगा. अब उसको बीपी को कम करना है ना, नॉर्मल पे लाना है. सो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इट विल बी अ वैसोडाइलेटर. वैसोडाइलेटर है तो वो क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द बीपी. बीपी डिक्रीज हो जाएगा, डायलेशन हुआ ब्लड वेसल्स का, तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा. यस. सो अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कब फंक्शन में आएगा? जब बीपी इज हाई. और क्या फंक्शन करेगा, क्या एक्शन करेगा? बीपी को लो करेगा. ऑलराइट. सो कैन वी से दैट इट इज एंटागोनिस्टिक टू एंजियोटेंसिन 2. एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट. It has opposite action
opposite action to angiotensin 2. Opposite action to angiotensin 2. इसी को हम बोलते हैं that it is antagonistic. Antagonistic मतलब opposite in action. और same action वाले को क्या बोलते हैं? Do you know the word for same action? Synergistic. Synergistic will be same action. Antagonistic will be opposite action. क्यों बोल रहे हैं antagonistic है angiotensin 2 को? Because angiotensin 2 is a vasoconstrictor. BP को increase करता है. ANF is a vasodilator. BP को decrease करता है. So opposite action to angiotensin 2, we call that it is antagonistic. Antagonistic. Opposite के लिए antagonistic. To angiotensin 2. और कौन सा हार्मोन था रास में? एक तो इसके ऊपर वो aldosterone. It will stimulate or it will decrease the secretion of aldosterone. क्या होगा जब aldosterone का? एक तो इस पे है, okay? Opposite action. Number 1, ANF का. Now we are seeing functions of ANF. Second, it will decrease the secretion of aldosterone. उससे क्या होगा? हाँ, it will decrease decrease secretion of aldosterone from adrenal gland. It will decrease secretion of aldosterone from adrenal gland. तो क्या हो जाएगा? Decreased reabsorption of sodium and water. मतलब क्या? Increased excretion of sodium and water. Reabsorption कम हो रहा है बॉडी में, मतलब यूरिन में जा रहा है. Alright, so this causes decrease reabsorption of sodium and water. इसी का मीनिंग होगा अगर बॉडी में सोडियम कम रीएब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. Increased excretion of sodium and water. ये दोनों सेम चीज है. जब हम बोल रहे हैं किसी भी चीज का रीएब्सॉर्प्शन कम हो रहा है, मतलब वो यूरिन में जाएगा. Increased excretion of sodium and water. ये increased excretion of sodium को बोलते हैं नाट्री. This Na is for sodium in it. Natriuresis. Natriuresis is increased excretion of sodium in urine. Natriuresis. अब देखो आपको पूरा नाम समझ में आ रहा है क्या? Why atrial? Yes, because atrial wall will have receptors. Atrial wall is secreting it. Why natriuretic? Because it will increase excretion of sodium in urine. इसीलिए हो गया एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. ये किसको एंटागोनिस्ट होगा? एक तो वो एंटागोनिस्ट है एंजियोटेंसिन 2 को, दूसरा किसको एंटागोनिस्टिक है? एल्डोस्टेरोन, बिकॉज इट इज अपोजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. ऑलराइट, सो यू विल राइट ओवर हियर दैट इट इज एंटागोनिस्टिक टू एल्डोस्टेरोन आल्सो. It is antagonistic to aldosterone also. एक तो वो एंटागोनिस्टिक है एंजियोटेंसिन 2 को, दूसरा वो एंटागोनिस्टिक है एल्डोस्टेरोन को. मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में जो दो हार्मोन्स काम करके दे रहे थे, दोनों का एक्शन अपोज करेगा. वो दोनों क्या कर रहे थे? बीपी को इंक्रीज कर रहे थे, और एएनएफ क्या करेगा? बीपी को डिक्रीज करेगा. ऑलराइट, बिकॉज
दिस इज एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर. एल्डोस्टेरॉन को बोलते हैं एंटी नाट्री यूरेटिक फैक्टर. एंटी नाट्री यूरेटिक हार्मोन. What do we mean by anti-natriuretic? Opposite to natriuretic. It will not let more sodium excrete in the urine. Anti-natriuretic हार्मोन सोडियम को एक्सक्रीट नहीं होने देगा यूरिन में. आपको चाहिए तो उसके नीचे ब्रैकेट के नीचे लिख के रखो एंटी-नाट्रियूरेटिक हार्मोन के नीचे. सोडियम को एक्सक्रीट नहीं होने देगा यूरिन में बिकॉज इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का. इट इज एंटी नाट्रियूरेटिक हार्मोन. अब समझ में आ रहा है? नाउ यू टेल मी वन थिंग. लेट अस मूव ऑन. यू टेल मी वन थिंग. लेट्स डू अ चार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. देखो, आप मुझे बोलो कि एंजियोटेंसिन 2 ये सिक्रीट कब होगा या एक्शन में कब आएगा? लो, हाँ, मतलब लो बीपी है. ओके, लो जीएफआर है और इसका एक्शन क्या होगा? इंक्रीज बीपी. इंक्रीज बीपी व्हिच विल इंक्रीज द जीएफआर. ओके, नेक्स्ट एल्डोस्टेरॉन ये सिक्रीट कब होगा? फिर से जब लो बीपी है, लो ब्लड वॉल्यूम है. और इसका एक्शन क्या होगा? इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इन जीएफआर. एएनएफ सिक्रीट कब होगा? When there is high BP, high blood volume. और उसका एक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज करेगा बीपी. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. कौन सा हार्मोन सिक्रीट कब हो रहा है और उसका एक्शन क्या हो रहा है? You cannot interchange the two columns. You have to understand कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट कौन सी कंडीशंस में होगा और उसका एक्शन क्या होगा. What will be its action? तो GFR के टर्म्स में कौन GFR बढ़ाएगा, कौन GFR कम करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन जीएफआर बढ़ाएंगे और एएनएफ जीएफआर कम करेगा. मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बियॉन्ड लिमिट्स बीपी को बढ़ा नहीं सकता. कौन उस पे चेक रख रहा है? एएनएफ. हु इज द पुलिसमैन फॉर दैट रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम? एएनएफ. इट इज गोइंग टू कीप अ चेक कि बीपी और ब्लड वॉल्यूम एक्सेसिवली नहीं बढ़ने चाहिए. कंट्रोल में रखेगा उनको. ऑल राइट, सबको समझ रहा है बेटा ये? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आई विल टेल यू द पेज नंबर. जिनका हो गया है वो खोलो. एक ही पैराग्राफ, कल से हम वो एक ही पैराग्राफ कर रहे हैं. सो वी विल रीड दैट पैराग्राफ. यस. Angiotensin 2 and ANF, all three together keeps blood volume and blood pressure in balance. हाँ, और भी चीजें एक्चुअली, सिर्फ ये तीनों नहीं. चलो, you open page number 294. Quickly open page number 294. उसका फर्स्ट पैराग्राफ देखो. अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी है देखो, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इट इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट. हेल्दी यहाँ पे मीन्स डिजीज फ्री इंडिविजुअल. ओके, and 180 liters per day.
See now, kidneys have a built-in mechanism to regulate for regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus JGA. JGA is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and efferent arteriole at the location of their contact, जहाँ पे ये contact में आते हैं ये वाले cells. A fall in GFR can activate the juxtaglomerular cells to release renin. Page number 294 है बेटा. Okay. To release renin, which can stimulate glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. Are you getting it? Now I want you to come to page number. Actually, it should have been given in continuation to this, but it's given here. Page number 297. Regulation of kidney function में वो JGA वाला पैराग्राफ देखो. थर्ड पैराग्राफ अगर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखें तो juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role. Fall in glomerular blood flow or glomerular blood pressure or GFR देखो तीनों can activate juxtaglomerular cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor. सबको पैराग्राफ मिला है आई होप. Okay, it can increase glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 एक तो vasoconstrictor है. अब second sentence देखो. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Adrenal cortex means cortex part of the adrenal gland. Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubule. हम देखेंगे कौन से distal part से reabsorption कराता है वो हम reabsorption में देखेंगे. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. Because increased reabsorption हो रहा है सोडियम और वाटर का, BP बढ़ेगा, blood volume बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. An increase in blood flow to the atria of the heart. Now heart has come into picture. Increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. ANF can cause vasodilatation, dilation of the blood vessels. Dilation of the blood vessels and thereby decrease the blood pressure. Vasodilation करेगा तो blood pressure decrease होगा. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. यहाँ पे aldosterone नहीं दिया हुआ है but aldosterone पे भी ANF काम करेगा और decreased reabsorption करेगा सोडियम और वाटर. अगर reabsorption decrease हो रहा है मतलब excretion increase होगा. Okay, so it is called natriuretic factor. Natriuretic means increased excretion of sodium in the urine. तो aldosterone क्या हो जाएगा? एंटी नाट्रियूरेटिक हार्मोन. ये एक पैराग्राफ अगर हमने ऐसे नहीं किया रहता था तो नहीं समझ में आता है. ऑलराइट, सो यू शुड हैव दिस फ्लो चार्ट विथ यू कि कौन क्या कर रहा है टू अंडरस्टैंड दैट वन पैराग्राफ इन द टेक्स्ट. चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. आज हार्मोन का ही डे है तो आगे भी हम हार्मोन ही करेंगे. ऑलराइट, नाउ गिवन टू सिचुएशंस यू हैव टू इमेजिन कि ये सिचुएशंस में क्या होता है बॉडी. एक ब्लड वॉल्यूम कम है, blood volume is less, BP is less. This is situation number 1. And the second situation is blood volume is more, BP is more. कब आएगी ये वाली कंडीशन जब बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है? कब आएगी ये कंडीशन? यस, नो, forget about what we have done previously. आप अब सोच के देखो.
बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम कम कब होगा? यस, Reabsorption का होगा। व्हेन देयर इज स्वेटिंग, when there is increased blood loss due to any injury, एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी का ब्लड लॉस हुआ है बहुत सारा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, हॉट समर डेज, when there is decreased intake of water, decreased intake of water, आज मैंने पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है, डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ऑलराइट, बीपी कम होगा। अब ये कंडीशन बोलो, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, बीपी इंक्रीज कब होगा? कोल्ड डेज, व्हेन देयर आर नो Exertion. एक्टिविटी, बिकॉज एक्टिविटी में तो स्वेटिंग होगा। नो एक्टिविटी, कोल्ड डेज, इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ वाटर, बहुत पानी पिया है पर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ भी डेली रूटीन भी नहीं किया, पूरा दिन आराम कर रहे हैं, बॉडी इज एट रेस्ट, इतना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, ऑलराइट। नो स्वेटिंग, नो स्वेटिंग, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ऑलराइट। अब कौन चेक रखेगा कि ब्लड वॉल्यूम को, हमको ऑस्मोलैरिटी तो हमेशा बनाए रखनी है, आप चाहे 1 गिलास पानी पियो या 20 गिलास पानी पियो, बॉडी को तो ऑस्मोलैरिटी बना के रखनी है। हु विल कीप अ चेक ऑन दिस ऑस्मोलैरिटी? नहीं, उसको भूल जाओ अभी, ओके, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। सो देयर आर ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, ऑस्मोरिसेप्टर्स in the body, they do the work of osmoregulation, osmoregulation, osmoregulation मतलब osmolarity को maintain करेंगे। osmoreceptors in the body, they do the work of osmoregulation, that is maintenance of osmolarity। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ये भेजते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये साइड लो ब्लड वॉल्यूम था ना, हाँ, सो जब ब्लड वॉल्यूम कम है, ये भेजेंगे पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, they will send positive feedback to hypothalamus, and when the blood volume is more, they will send negative feedback. Now what is positive feedback and what is negative feedback? Negative feedback to hypothalamus again. Osmoreceptors in the body, they can sense कि ब्लड वॉल्यूम कम है कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा तो पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। अब किसके लिए, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। डू यू नो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? डू यू नो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? व्हाट इज हाइपोथैलेमस? द ब्रेन is divided into 4 brain, mid brain and hind brain. This part will come in nervous coordination chapter. Brain is divided into 4 brain, mid brain, hind brain. अगर आप लोग ये लिख रहे हो तो अलग से लिखो दूसरे पेज पे, don't disturb that chart. Alright, because we will go back to it. Now mid brain में आता है thalamus, hypothalamus and epithalamus. तो यहाँ पे MCQ आता है that hypothalamus is which part of the brain? Mid brain. Hypothalamus is a part of the mid brain. Right? ये hypothalamus में
this hypothalamus, it secretes hormones. This hypothalamus, it secretes hormones. और hypothalamus से hormones जाते हैं anterior pituitary. What is pituitary? It's a gland present in It's an endocrine gland. Where is it present? at the form. Where is it present? Sphenoid bone. Which part of the sphenoid bone? Which cavity in the sphenoid bone? Sella turcica. Sella turcica. Okay. So anterior pituitary and posterior pituitary. Posterior pituitary. All right. Anterior pituitary को बोलते हैं adenohypophysis. 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 And posterior pituitary को बोलते हैं neurohypophysis. इसकी डिटेलिंग बाद में. Alright, but you have to understand कि posterior pituitary को neurohypophysis बोलते हैं, anterior pituitary को adenohypophysis बोलते हैं. They are alternative names. और posterior pituitary से एक हार्मोन रिलीज होता है which is ADH. ADH. ADH secrete कौन करता है? हाइपोथैलेमस. रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करेगा, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहेंगे ये हार्मोन्स. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहेंगे. So one of the hormones is antidiuretic hormone, ADH. What is the logical meaning of antidiuretic hormone? Reduce production of urine. Antidiuretic मतलब anti dilution, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा. Alright, so you all will write over here with me for your notes. It is anti-diuretic हार्मोन. अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज एंटी डाइल्यूशन हार्मोन. एंटी डाइल्यूशन हार्मोन. एंटी डाइल्यूशन मतलब यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा. प्लीज लिख लो यहाँ पे आपके टर्म्स. यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा मतलब क्या करेगा? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन किसका करेगा बॉडी में? पानी का. इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा तो क्या करेगा? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो इसी के नीचे लिखेंगे. ये साथ में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. So increased reabsorption of water and sodium and water. Anti-diuretic हार्मोन, एंटी डाइल्यूशन हार्मोन. यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देगा मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे. कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन will be passed. Concentrated urine will be passed. सब लोग अच्छे से समझो. इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करेगा पानी का बॉडी में तो यूरिन में पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कम जाएगा. तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा. ऑलराइट, कैन आई चेंज द बोर्ड? डन. लेट मी कम टू द प्रीवियस सिनेरियो नाउ. देखो क्या था. जब ब्लड वॉल्यूम कम है
बीपी कम है, बॉडी में इंक्रीज ब्लड लॉस है, ये सारी कंडीशंस की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ये क्या मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब एडीएच को रोकना है, बॉडी में कम है, ओके, सो एडीएच को बढ़ाएगा. यस, पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट एडीएच. एडीएच क्या करेगा? इट विल इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इससे क्या होगा? बॉडी का क्या होगा इससे? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा. यस, सो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीजेस. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा. जब पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा बॉडी में, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन बॉडी, तो यूरिन कौन सा पास होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. समझ रहा है हर्षल? यस. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को क्या होगा? लेस. यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रिड्यूस. क्वांटिटी ऑफ यूरिन को क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ यूरिन कम हो जाएगा. अब ये सिचुएशन इमेजिन करके देखो, जिस दिन एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, डू वी गो फॉर यूरिनेशन मोर फ्रीक्वेंटली? नो. हॉट समर डेज में डू वी गो फॉर यूरिनेशन मोर फ्रीक्वेंटली? नो. जब हमने कम पानी पिया है, ऑलराइट, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है या कम रहती है? क्वांटिटी ऑफ यूरिन कम रहेगा. ऑलराइट, सो इट इज द सेम सिनेरियो. देखो, तो बॉडी इसको मैनेज करती है थ्रू दिस हार्मोनल मैकेनिज्म. लेट अस सी द फर्स्ट केस अगेन. ब्लड वॉल्यूम कम है, बीपी कम है. ऑलराइट, सिचुएशंस हमने देख लिया कब हो सकती है. तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी, दे कैन सेंस दिस ब्लड वॉल्यूम. दे विल सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? मिड ब्रेन में. ओके, इट सिक्रीट्स दिस हार्मोन विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब कर लो. ऑलराइट, सो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा. यूरिन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कम हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ यूरिन कम हो जाएगा. अब इमेजिन करके देखो, जिस दिन हम कम पानी पीते हैं, बहुत हॉट समर डेज हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग हुआ है, हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं या डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं. द क्वांटिटी विल बी लेस, द फ्रीक्वेंसी विल बी लेस. इसी का ऑपोजिट ये वाला सिचुएशन है. ऐसे दिनों पे क्या होता है? जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, कोल्ड डेज है, नो एक्टिविटी, इंक्रीज वाटर इनटेक, आपने आज 25 गिलास पानी पी लिया है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी. यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या डाइल्यूट रहेगा? डाइल्यूट रहेगा. यू कैन सी दैट द यूरिन इज लाइटिश येलो इन कलर, मोर वाटर, लेस सॉल्ट्स, डाइल्यूट यूरिन रहेगा. ऑलराइट, सो ये कैसे हुआ? नेगेटिव फीडबैक गया हाइपोथैलेमस को. क्यों नेगेटिव फीडबैक? टू डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन. yes, so what will the hypothalamus do? Decrease secretion of ADH. डिक्रीज कर दो या सप्रेस कर दो. सप्रेस मतलब भी कम कर दो, स्टॉप कर दो या कम कर दो. क्या होगा जब हम ADH के सिक्रीशन को बंद कर देंगे या स्टॉप कर देंगे? यस, रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन इससे क्या होगा? रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी. तो क्या होगा? बीपी कम, ब्लड वॉल्यूम कम बॉडी में, और यूरिन का क्या होगा? डाइल्यूट यूरिन. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को क्या होगा? इंक्रीज. सो डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन of sodium and
वाटर इन बॉडी। इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बीपी कम होगा, नॉर्मल पे आ जाएगी ऑस्मोलैरिटी। लेकिन यूरिन को क्या होगा, यस, अगर यूरिन के टर्म्स में लिखेंगे तो डाइल्यूट यूरिन, frequency of urination more, increased, quantity is increased. कुछ नहीं है, इसको आपको नॉर्मली आपके नॉर्मल डेज के साथ इमेजिन करके देखना है। हम समर्स में ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जाते हैं या विंटर्स में जाते हैं? विंटर्स में। क्यों? बिकॉज स्वेटिंग नहीं है। जिस दिन आप अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, आप इधर से उधर भाग रहे हो, यूरिनेशन कम रहेगा। आप घर में रेस्ट कर रहे हो, बॉडी की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यूरिनेशन ज़्यादा रहेगी। वाटर इनटेक, जिस दिन 1 गिलास पानी पिएंगे उस दिन ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जाएंगे, या जिस दिन 20 गिलास पानी पिएंगे उस दिन 20 गिलास पानी। किसी भी हालत में बॉडी को अपनी ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब नहीं करनी है। आप 1 गिलास पानी पियो या आप 20 गिलास पानी पियो, आप 20 किलोमीटर्स रनिंग करो या आप 1 किलोमीटर भी रनिंग मत करो, बॉडी अपनी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगी। बॉडी हैज दीज ऑस्मो रिसेप्टर्स विच कैन सेंस कि आज पानी कम है बॉडी में। पानी कम है तो क्या करेंगे, एडीएच को पिक्चर में लाएंगे। एडीएच क्या करके देगा, इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन। कैसे रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, ताकि वहाँ से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो सके। सो यू विल राइट दैट पॉइंट ऑल्सो, इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट टू रीअब्जॉर्ब वाटर, ताकि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सके। समझ रहा है क्या लिखना है? हाँ, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? हाँ, इट विल इंक्रीज परमिएबिलिटी of cells in DCT and collecting duct, PCT नहीं। permeability बढ़ाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी reabsorption होगा। जब ADH का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ये permeability कम हो जाएगी, तो पानी का reabsorption कम हो जाएगा। Now again open your NCERT textbook जिनका हो गया है, एक पैराग्राफ सिर्फ रीड करेंगे फिर से। पेज नंबर 297, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब आप लोग पहले रीड करो, जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। पेज नंबर 297, फर्स्ट पैराग्राफ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को रीड करो, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। रीड इट इन योर माइंड वेरी स्लोली, देखो आपको समझ रहा है क्या एक लाइन उसका। बता दो, रीड करो पेज नंबर 297, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल पैराग्राफ, मतलब अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझिए तो वो समझ में आएगा रीड करने पे, नहीं तो सिर्फ रीड करने पे नहीं समझ में आता है वो पैराग्राफ।
Whatever you are reading, you correlate with this, what we have written. आप एडीएच भी वैसे कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं भी वही बता रही हूँ। Diuresis is passing of dilute, तो ये एंटी डाइल्यूट। ओके, अगर ADH BP को बढ़ा के देता है, ऑलराइट, तो वो वैसोडाइलेटर होगा या वैसोकंस्ट्रिक्टर होगा? वैसोकंस्ट्रिक्टर। सो दिस इज आल्सो अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये उसका एक एक्शन हो गया, इंक्रीज परमिएबिलिटी। सेकेंड एक्शन इज इट इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब मुझे बोलो कि कंस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या? अगर ये ट्यूब है, इसको कंस्ट्रिक्ट करना मतलब ऐसा, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं ट्यूब को। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना ब्लड वेसल को, वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ADH is also called vasopressin. So you should be writing this. Vaso is blood vessel, pressin is constriction. It's a vasoconstrictor. Vasopressin, vasoconstrictor BP को बढ़ा के देगा। अगर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है मतलब BP को बढ़ाएगा। ऑलराइट, अब मुझे बताओ एंजियोटेंसिन 2, ADH और ANF में से वैसोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से हैं? एंजियोटेंसिन 2 एंड ADH। ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। सो तीनों में से अगर ऑड वन आउट सिलेक्ट करना होगा तो ANF, बिकॉज बाकी दोनों वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। ऑलराइट, अब मुझे बताओ कि कौन से तीनों में से ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कौन करके दे रहा है? ADH और एंजियोटेंसिन 2। ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कौन करेगा? ANF। ऑलराइट, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ये जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है वो वाले पैराग्राफ के ऊपर। तो फिर से एक बार रीड करेंगे। यू ऑल सी इन योर टेक्स्ट बुक। सी, functioning of the kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, juxtaglomerular apparatus, and to a certain extent the heart. Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume. Changes लिखा है देखो, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ऑस्मोरिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे? व्हेन देयर आर चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। MCQ, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तभी ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। चेंज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑस्मोलैरिटी, एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिम्युलेट द हाइपोथैलेमस। स्टिम्युलेट कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव फीडबैक, टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब posterior pituitary, posterior pituitary, write it down over there. ADH facilitates means increases, okay? It will facilitate water reabsorption from later parts of the tubule. देखो लिखा हुआ है later parts में क्या क्या आएंगे? DCT और collecting duct। later parts of the tubule facilitates मतलब उसको हेल्प करेगा वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में। कैसे हेल्प करेगा? उसके सेल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, सो दैट मोर एंड मोर वाटर कैन बी रीएब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, टिब्यूल से बॉडी में जा सके पानी। फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, thereby preventing diuresis। diuresis मतलब passing of dilute urine। अगर बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होगा तो डायूरेसिस होगा क्या? नहीं। सो इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस मीन्स डाइल्यूट यूरिन एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अब ये सेकेंड सिचुएशन है। इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्विच ऑफ करेगा एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। मतलब ADH का रिलीज कम होगा जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज्ड है। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है।
वैसोप्रेसिन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, प्रेस करेगा. दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय GFR. आर यू गेटिंग इट? सो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बाय हार्ट लर्न करनी है. ये चीज़ ऐसी है कि आपको सिचुएशन सोचनी है. कुछ नहीं याद आ रहा है ना, सिचुएशन सोच के देखो. ब्लड वॉल्यूम कम है तो बॉडी क्या करेगी? पानी को बचाएगी, पानी को एक्सक्रीशन के लिए नहीं जाने देगी. ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, मैंने आज 25 ग्लासेस ऑफ वाटर पिया है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो क्या बॉडी अपना बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट होने देगी? नहीं. बॉडी अपनी ऑस्मोलैरिटी हमेशा हमेशा मेंटेन करेगी. तो फिर वो पानी का क्या करेंगे? एक्सेस पानी का उसको एक्सक्रीशन के लिए भेजो. Whatever is not required by the body, अपनी कंडीशन मेंटेन रखने के लिए उसको बॉडी एक्सक्रीशन के लिए भेजे. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम 25 ग्लास पानी पीते हैं तो वो पानी बॉडी में रहता है, नहीं. इंक्रीज यूरिनेशन. ऑलराइट, हाँ, इंक्रीज यूरिनेशन के साथ जो भी यूरिया रिटेन्ड रहेगा. यूरिया क्यों रिटेन किया था बॉडी ने? क्योंकि पानी नहीं था. आज बहुत पानी है, यूरिया को भेज दो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है. डू यू नो द वर्ड डिटॉक्सिफाई? हाँ, हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होता है. दिस डिटॉक्सिफिकेशन इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज यूरिया इज व्हाट? टॉक्सिक सब्सटेंस. तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल दिया, रिमूव कर दिया. अगर पानी अच्छा रहेगा तो रोज का रोज यूरिया निकलता जाएगा, अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन होगा. इसीलिए बोलते हैं कि रोज कितना पानी पियो? 8 to 10 glasses of water. So Yuvraj is drinking water in between the lecture. Detoxification. All right. चलो. Is this very clear with all of you? Yes. ये बहुत important part है, ये hormonal part of this chapter. All right. थोड़ा सा और सिर्फ. There is still time. We have time. Yes, we have time. Okay. चलो. What is reabsorption? What is reabsorption? Which step of urine formation? Second step. Reabsorption. Reabsorption is second step of urine formation. Second step of urine formation. Reabsorption is second step of urine formation. First step क्या है urine formation का? Ultrafiltration. Second step is reabsorption. कहाँ पे reabsorb कर रहे हैं? कहाँ पे वापस ले रहे हैं? टिब्यूल से वापस ले रहे हैं. From tibule to body. नहीं बेटा, पूरा टिब्यूल लिखा है मैंने. टिब्यूल means renal tubule. What is the first part of renal tubule? Bowman's capsule. Second part, descending limb. Third part, ascending limb. Fourth part, DCP. And then you have the collecting line. All right. Tubule से body में. PCT. हाँ, PCT में भी reabsorption होगा. All right. रीएब्जॉर्प्शन के साथ एक पॉइंट लिखेंगे कि बोमेन्स कैप्सूल में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है. बोमेन्स कैप्सूल नो रीएब्जॉर्प्शन. किस में काम करता है बोमेन्स कैप्सूल? अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इट ओनली वर्क्स इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन. रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है वहां से. ऑलराइट. रीएब्जॉर्प्शन में चीजें किसके पास वापस जाएगी? बॉडी के पास. व्हाई आर वी कॉलिंग इट रीएब्जॉर्प्शन एंड नॉट एब्जॉर्प्शन? क्योंकि हम डाइजेशन के टाइम पे खाना खा के ग्लूकोज एंड ऑल ये सब एब्जॉर्ब कर चुके हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं? उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? किससे रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं? फिल्ट्रेट से. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है? रीनल फिल्ट्रेट. और प्राइमरी यूरिन. और चलो, रीनल फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है?
नेफ्रिक फिल्ट्रेट, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। क्यों डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं। चलो, सो ये देखो, इफ दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी, this is descending limb, this is ascending limb, this is DCT and this is the collecting limb. ये डायग्राम तो फटाफट आना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा, इट इज कॉल्ड प्राइमरी यूरिन, इट इज कॉल्ड नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इट इज कॉल्ड रीनल फिल्ट्रेट, इट इज कॉल्ड डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, ऑलराइट। ये सारी चीजें, ये इसमें से 180 लीटर्स पर डे बनता है। ये क्या एक्सक्रीशन होता है 180 लीटर्स पर डे? एक्सक्रीशन कितना होता है? 1.5 लीटर्स पर डे। इसका मतलब इसमें से कितना परसेंट बाहर आता है? 99% बाहर आता है। बाहर आता है मींस बॉडी को आता है, बॉडी को आता है, ऑलराइट। अगर ये बॉडी में जाना है मतलब ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड में जाता है वापस। यस, चल अब देखो पीसीटी से कौन सी चीजें रीएब्सॉर्ब होती है। ये पीसीटी है, पीसीटी में 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। 99 में से 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है। नाउ सी व्हाट ऑल थिंग्स आर रीएब्सॉर्ब फ्रॉम हियर। क्या क्या निकलता है यहाँ से? यहाँ से निकलते हैं सारा ग्लूकोज, बॉडी वांट्स पूरा ग्लूकोज वापस जो भी आएगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, सारी चीजें यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी। 70 to 80% पूरा यहाँ से वापस ले लेगी बॉडी। जितना यहाँ गया था उसका 70 to 80% बॉडी विल टेक इट बैक। Some urea is also reabsorbed. Why? To maintain osmolarity. To maintain osmolarity. Now, do you remember descending limb से क्या निकलता है बाहर? Water. याद है? Descending limb is permeable to water. And ascending limb से क्या निकलता है बाहर? Salts. So NaCl, NaCl. DCT से क्या reabsorption होता है? बाहर क्या निकलता है? पानी, यस, और सॉल्ट्स, ऑलराइट। सम बाइकार्बोनेट आयंस आल्सो टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आयंस भी होंगे, HCO3। कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलेगा बाहर? पानी और यूरिया। इट इज द लास्ट कॉल कि कितना पानी है उसके हिसाब से यूरिया जाएगा, अदरवाइज यूरिया बॉडी में रिटेन होगा। अब देखो ये सारे एरो मैंने कहाँ से कहाँ बनाए हैं? टिब्यूल से बॉडी। फ्रॉम टिब्यूल टू बॉडी इज द प्रोसेस ऑफ रीएब्सॉर्प्शन। बॉडी से बाहर निकलेगा, टिब्यूल से बाहर निकलेगा, मतलब फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रीएब्सॉर्प्शन में चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं? फिल्ट्रेट से ब्लड में, मतलब टिब्यूल से बॉडी में। फिल्ट्रेट से ब्लड में, मतलब टिब्यूल से बॉडी में। आर यू गेटिंग इट? यस। चलो क्या क्या रीएब्सॉर्ब होगा? पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होगा, एमसीक्यू मैक्सिमम कितना परसेंट? 70 to 80%। 99 में से 70 to 80% काम पीसीटी करके देता है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर आएगा, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स वापस आएंगे और डीसीटी से फिर से सोडियम और वाटर। बट ये वाला सोडियम और वाटर और ये वाला वाटर इज व्हाट? कंडीशनल, कंडीशन डिपेंडेंट। कंडीशन डिपेंडेंट मतलब जो हमने देखा अभी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है। कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। ये सेंटेंस पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल मतलब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट।
conditional reabsorption of salts and water. रात को जल्दी सो. Conditional reabsorption of salts and water takes place from later parts of the tubule. Condition dependent. Condition dependent. यहाँ पे बॉडी मैक्सिमम तो ले लेगी जितना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए. उसके बाद कितना वाटर इनटेक है, क्या है, उसके हिसाब से ये बैलेंसिंग होगी. कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा क्या वाटर का? नहीं होगा, जाने दो पानी को. कंडीशन में अगर बहुत कम पानी है तो इंक्रीज करो रीएब्जॉर्प्शन को, पानी को एक्सक्रीट नहीं होने दो. कंडीशन डिपेंडेंट रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल. चलो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन का इतना पार्ट पढ़ेंगे. रीएब्जॉर्प्शन में इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कहाँ से कहाँ जाएगी चीज़ें, कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड. Okay, and this reabsorption, it can be active. Active मतलब, and it can be passive. Active मतलब against concentration gradient. Against concentration gradient. मतलब low से high. Against concentration gradient. It will require energy. Do you remember हमने PCT के एपिथेलियम के साथ लिखा था कि उसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है. It can use more energy, ज़्यादा reabsorption करता है. Okay, passive means along the concentration gradient. Along concentration gradient. Does not require energy. Does not require energy. चलो, we are on page number 294. चलो, पेज नंबर 294, third paragraph on that page, comparison of the volume of filtrate formed per day, which is 180 liters per day, with that of the urine released. Urine released कितना है? 1.5 liters per day. Okay, page number 294, third paragraph. Suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. Tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism. या तो active reabsorption होगा या passive reabsorption होगा. पहले टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, बाद में लिखो ये. For example, substances like glucose, amino acids, salts in the filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. ये next paragraph छोड़ दो. Now come to function of tubules. PCT. PCT is lined by which epithelium? Simple cuboidal with brush border. Brush border increases the surface area for reabsorption. Nearly all the essential nutrients, MCQ, all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT से 70 to 80% reabsorption हो जाएगा salts और water का और nutrients का. That is glucose, amino acids, nutrients, vitamins, everything. Now next sentences छोड़ दो, that is about secretion. We will see that. Henle's loop. Reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of interstitial fluid. This we'll see. Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. Do you remember हमने बोला था इससे पानी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, concentrated. और यहाँ से salts निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? filtrate, hypotonic. Next sentence. Ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets
ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड. मेड्यूलरी फ्लूइड मतलब ये मेड्यूला में है. लूप ऑफ हेनले किस में आता है? मेड्यूला में. तो ये बाहर का फ्लूइड इज द मेड्यूलरी फ्लूइड. डीसीटी, प्लीज सर्कल करो कंडीशनल वर्ड वहां पे डीसीटी के पैराग्राफ पे. कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. कंडीशन डिपेंडेंट. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate ions HCO3. सोडियम और वाटर तो होगा ही, उसके साथ बाइकार्बोनेट आयंस भी होंगे. उसके बाद सिक्रीशन वाला छोड़ दो, वो हम देखेंगे. कलेक्टिंग डक्ट नाउ, नेक्स्ट पेज. दिस इज लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेड्यूला. दिस वी हैव सीन. लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब. ये कुड बी को अंडरलाइन करो. कुड बी मतलब फिर से कंडीशन डिपेंडेंट. कंडीशन रहेगी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं. लो ब्लड वॉल्यूम है तो रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं. कुड बी रीएब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. जितना पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब करेंगे तो यूरिन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा. दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. क्यों यूरिया को वापस भेज रहा है? टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. पानी कम है तो यूरिया अगर ज़्यादा है तो उसको बॉडी में वापस रिटेन करेंगे. एक्सक्रीशन के लिए नहीं भेज सकते हैं. ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन वाला बाद में देखेंगे. इज दिस पॉइंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन क्लियर विथ यू? यस. Ma'am, so retention of urea is done